So the problem is we have a beam having one end hinged, other end is on roller support. So this end can slide over this fixed support. Now there are three concentrated loads at some given angles. In such cases, we will convert these forces into their components along horizontal component and along vertical component and find out the values. As the angles are given, so we can find out the components. Now, so from here we can understand for these three vertical loads, the reaction forces at R A at B RB. So this RA will be the reaction and RB will be the reaction vertically. So this RA and RB will support these vertical loads. So we can write RA and RB is equal to 86.6 plus 141.4 plus 150. Okay, so we can write it, but that is not required. So taking moment about either of A or about B, we can find out RB or RA. So if we take moment about A point, then we will find out RB using the condition of equilibrium. And similarly, if we take moment about B, then we will find out RA. And from this equation, we can find out the other one. Okay, so RA and RB can be found out. Now, when RA and RB found out, I will write the values directly over here. RA is 173.15 and RB equal to 204.85 by taking moment about A, RB can be found out. Okay, so we have found out these values. Now, how the vertical loads will be nullified by using these two reaction force, but how the horizontal force will work on here. So as the horizontal forces all are in leftward direction, this side will not provide any resistance because this end B is on sliding support. So sliding support cannot provide resistance on horizontal load. This end B is free to move. So all the horizontal loads will be supported by this A. So here at A, the horizontal reaction will be summation of all these three horizontal forces. So this horizontal reaction at A will be rightward opposite to the these three forces opposite direction. So that will be on total 50 plus 1.414 plus 259.8. It will become 451.8 Newton. Okay, so this will be the horizontal reaction. Now, using these vertical loads, we will draw the shear force diagram. The shear force diagram will be, we will not discuss over here because we have done sufficient. We will just draw the diagram. Later, if you find any problem, you will ask me and I will again later we will discuss. So this will be the shear force diagram. Where this is 173.15, here it is 86.55, this is minus 54.85 and this is 204.85. Okay, so this will be a shear force diagram. You all know how to find out the shear force diagram. We have discussed sufficient, so you can do that by on your own, very easy.
Now the bending moment diagram will be all positive, as it will cause sagging type of moment. So I'll just draw their slope is not same. Now this is 173.15, this is 259.7, this is 204.8, and this A and B will be 0. What I have forgot to write here, the distances, otherwise you cannot find out the bending moment. All are 1 meter. Okay, so you can draw bending moment by yourself. It is very easy problem. Now what we are going to do is find out a thrust diagram or axial force diagram. This is the new thing, thrust or axial force diagram. The horizontal components of the inclined loads will introduce axial force or thrust in the beam. The variation of axial force for all sections of the beam can be shown by a diagram. That diagram is called thrust or axial force diagram. Now these can be drawn in this way. So we will draw when the force is towards the hinged joint, or this point A or leftward, we will take the axial force HA at, this will be 451.20 Newton. We have found out here. At A point, at hinge, this force, horizontal force, is 451.8 Newton. So this is a concentrated load. So from here to here, there is no other horizontal forces. So from, if we name them as C, D and E, this is also then will be similar, C, D, E. Then the horizontal force will be unchanged up to C point. So now it will be like this, and the value will be how much? 451.8, just same as the horizontal component, 451.8 Newton. Okay, after that, in here it will be 50 less, because we have taken this horizontal force when rightward we have taken positive, just like we have done x and y. So when y positive we write it in upward, when y negative we write it in downward. Similarly, when x, the reaction working at A, working rightward along positive x, so we will taken here is positive thrust. So now at here 50 is in opposite side, so that's why we'll reduce the 50 over here, and we will draw another line, because there is no other force between C and D. So on D it will be furthermore less by 141.4. So when this is 50, this will be 401.4 401.50 less. Just a minute. Plus 4 plus 8. Okay, the calculation is okay. 401.8. If we minus 50 over here, then again at C we can find the forces 141.4. So it will again be reduced by this much amount, and it will be how much reduced? 141.4, because the force working here is
141.4. Now here it is 401.8 minus 141.4. Let me check it out in calculator. 401.8 minus 141.4. So this will be 260.4. And at E, let me calculate it fast. Probably there is some 50 plus 141.4 plus 259.8. This becomes 451.2. The calculation is, I have made a mistake here. So HA is 451.2. Okay. Okay, so here it will be 451.2. This will be 401.2, and that will be minus 50 minus 141.4. This will be 259.8. So what I am doing here, we are starting from this left side end. Here the horizontal reaction 451.2 कैसे मिला? ये जो तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है लेफ्टवर्ड है, तो रिएक्शन यहाँ पे होगा राइटवर्ड. ये तीनों फोर्स के लिए जो रिएक्शन होगा राइटवर्ड होगा वो होगा 451.2 समेशन ऑफ दिस थ्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये ए पॉइंट में जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक 451.2 न्यूटन. ठीक है, तो ए एंड सी के अंदर कोई दूसरा नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा. फिर यहाँ पे 50 है लेफ्टवर्ड एंड रिएक्शन इज राइटवर्ड, सो 50 लेस हो जाएगा यहाँ पे. सो ये यहाँ पे हो जाएगा 451.2 माइनस 50 हो जाएगा 401.2. यहाँ से फिर यहाँ पे कितना है 141.4 लेफ्टवर्ड, और ये कौन सा साइड में राइटवर्ड, सो माइनस हो जाएगा फिर से 141.4 यहाँ से, तो कितना मिलता है 259.8. और यहाँ पे क्या है, फिर से ये है 259.8, सो ये पूरा जीरो में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा एक्सियल थ्रस्ट. सो एक्सियल फोर्स डायग्राम और थ्रस्ट डायग्राम. सो ये लास्ट वाला हम क्या कहेंगे इसको, सॉरी THRUST थ्रस्ट डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम. अगर तुमको पूछा गया थ्रस्ट डायग्राम बनाओ तो ही बनाओगे, अगर नहीं चाहिए थ्रस्ट डायग्राम तो बनाने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर तुमको ऐसे इंक्लाइंड फोर्सेस दिया जाएगा तो क्या करना है, इसको कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेके शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाना है. ठीक है, समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ये सब. तो हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, जो है कि बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है. उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस बनता है वही होता है बेंडिंग स्ट्रेस. तो वो चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे. तो ये जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बीम में आता है ड्यू टू सम लोडिंग, सो उस लोडिंग के कारण बीम में डिफॉर्मेशन होता है. जो डिफॉर्मेशन होता है उसका कुछ नियम होता है, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है. तो वही सब कैलकुलेशन आज हम लोग सीखेंगे इन दिस चैप्टर में, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स. तो ये जो
डिफरेंट लोडिंग होता है, इसके लिए कुछ फोर्सेस आते हैं। अब उस फोर्स के अगेंस्ट में जो बीम है, बीम का जो मटेरियल है वो थोड़ा रेजिस्टेंस भी देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस देते हैं तो ये रेजिस्टेंस ही होता है स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस अगेंस्ट दोज डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूं, बीम faces different type of loading conditions. So for those loads on that beam, डिफॉर्मेशन होने का एक प्रवणता होती है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम के अंदर डिफॉर्म कर जाने की एक टेंडेंसी होती है। तो क्या करते हैं, बीम का जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी टाइप का जो डिफॉर्मेशन होता है उसको रेजिस्ट करना। तो ये रेजिस्ट करने के कारण में, ये जो करना चाहता है, तो इसके कारण इसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होता है। इसी को, ये जो स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस्ड होता है बीम के अंदर बाय बेंडिंग मोमेंट्स, दिस स्ट्रेसेस आर कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग बस प्योर बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। देयर आर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ बेंडिंग ऑकर्स, बिकॉज प्योर बेंडिंग कभी भी नहीं तो होता है, बेंडिंग ऑलवेज कुछ कुछ ना कुछ शेयर फोर्स उसमें रह ही जाते हैं। तो हम एनालिसिस के हिसाब से कुछ आइडिया लेने के लिए हम लोग ये बेंडिंग स्ट्रेसेस चैप्टर ये मान के चलेंगे कि प्योर बेंडिंग हो रहा है। देन व्हाट इज ए प्योर बेंडिंग, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज प्योर बेंडिंग एंड व्हाट आर द assumptions behind it? Behind the theory or concepts of pure bending. So ये दोनों हमको जानना है। If a length of a beam subjected to a constant bending moment and no shear force, ठीक है, एक बीम का कुछ लेंथ के ऊपर एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा एंड नो shear force will be there, then the stresses will be set up in that length of the beam due to bending moment only। ठीक है, कोई shear stress उस जगह में नहीं रहेगा, ओनली बेंडिंग मोमेंट रहेगा एंड दैट बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। सो दैट काइंड ऑफ बेंडिंग will be called pure bending or simple bending. So the stresses set up on that particular length of the beam will be called as bending stress। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं कौन सा कंडीशन में ये हो सकता है। मानो कि एक बीम है जो दोनों तरफ से ओवरहैंगिंग है, इधर एक लोड कम कर रहा है, इधर एक लोड कम कर रहा है, ये मानो कि W, ये भी मानो W। ठीक है, तो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट होगा, तो इसमें रिएक्शन भी W आएगा, यहाँ पे रिएक्शन भी W आएगा, क्योंकि ये सारे जो लेंथ है दोनों साइड में ये सेम है। ओके, इस कंडीशन में दोनों रिएक्शन सेम आएगा एंड एज ए रिजल्ट इसका जो शियर फोर्स जनरेट होगा वो कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा ऐसे, बीच में कोई शियर फोर्स का वैल्यू नहीं रखेगा, तो ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। तो बीच में कोई शियर फोर्स है नहीं, लेकिन हम लोग अगर इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ए बी दिए हैं, इस दो साइड का नाम सी डी देते हैं, तो ये सी डी, ये ए बी ऐसे होगा। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो पूरा का पूरा जगह है ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम और ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जो ए बी रीजियन है, ये जो ए बी रीजियन है, ये ए बी रीजियन
ठीक से देखो, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, जीरो शियर फोर्स। तो ये ए बी जगह जो है बीम का, ये हम बोल सकते हैं अंडर प्योर बेंडिंग। तो इसका कुछ एजम्पशंस होता है, जैसे कि हमने बोला है कुछ एजम्पशन है प्योर बेंडिंग का। एजम्पशंस क्या है? द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? द इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर इक्वल, मतलब इलास्टिक मॉड्यूलस इन ऑल डायरेक्शन आर इक्वल, एंड द मटेरियल इज होमोजीनियस, मतलब सेम डेंसिटी पूरा का पूरा बीम में। तो हम लिखते हैं assumptions क्या क्या है। आई थिंक ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, बाद में कोई भी बुक में है ये। और इसको तो स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा इसके ऊपर में, जैसे कि बाकी चैप्टर का मैंने दिया है। द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस मीन्स सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, एंड आइसोट्रोपिक मीन्स द इलास्टिक मॉड्यूलस इज सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नंबर 2 क्या है? द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। ओके, अगर हम टेंशन में देखेंगे तो इलास्टिक मॉड्यूलस जो होगा, कंप्रेशन में भी सेम इलास्टिक मॉड्यूलस होना चाहिए। नंबर 3, द ट्रांसवर्स सेक्शंस व्हिच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है बाद में देंगे हम, व्हेन वी स्टार्ट एनालिटिकल डिराइवेशंस, देन इसका डिस्कस करेंगे। बस याद रखो कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है व्हिच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब ये मानो अगर पेन है, ये एक बीम है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट होगा बीम के अंदर, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट होगा बीम के अंदर, इसको हम जब बेंड करेंगे, इसको जब हम बेंड करेंगे तब भी ये स्ट्रेट ही होगा। मतलब ये प्लेन स्ट्रेट रहेगा, ये प्लेन स्ट्रेट रहेगा, प्लेन ऑलवेज स्ट्रेट रहेगा आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग। ये कहता है एक ट्रेवर्स सेक्शन, इसको यहां से काट दे तो हमको मिलेगा ट्रेवर्स सेक्शन। ये ट्रेवर्स सेक्शन जो है वो सेम सेम एक प्लेन होगा, और ये सेक्शन स्ट्रेट ही रहेगा बेंडिंग करने के बाद भी। नेक्स्ट, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट्स बेंड इनटू सर्कुलर आर्क्स विथ ए कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बीम अगर मानो कि 100 नंबर ऑफ फाइबर से बना है, तो अगर इसको हम ऐसे बेंड कर देंगे तो वो फाइबर एक कर्वेचर ऐसे होगा कि सब फाइबर का सेंटर एक ही पॉइंट में होगा। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो जितना इसका थिकनेस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब इसका थिकनेस जितना है, इसको हम अगर बेंड कर दें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा, लार्ज होगा। ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। मतलब ईच लेयर इंडिविजुअली बेंड कर सकते हैं, उसके साथ ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर का डिफरेंस, मतलब कोई कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अलाउ मी अ मोमेंट। ओके, सो इस तक सबको समझ में आया? गिव मी अ रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ईच लेयर ऑफ द बीम, जैसे कि हम लोग मान के चल रहे थे कि ये बीम
ये जो बीम है ये बहुत सारा फाइबर से बना है, तो ये सारे के सारे फाइबर एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब एक फाइबर जो बेंड हो रहा है वो दूसरे फाइबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब एवरीथिंग ऑल राइट। नाउ हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो इसमें क्या होता है, मानो कि एक बीम का हम नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। एक बीम का एक सेक्शन ले लेते हैं जो कि स्ट्रेट है। ये हो गया एक्सिस ऑफ द बीम। अब ये बीम को अगर हमने ऐसे बेंडिंग मोमेंट दे दे तो क्या होगा, ये जो है ट्रेवर्स सेक्शन ए बी, क्रॉस सेक्शन ए बी, एंड ये जो है सी डी, एंड ये एन एन पोजीशन होगा इसका न्यूट्रल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बेंडिंग मोमेंट देंगे तो बेंडिंग कैसे होगा, ऐसे होगा। और ये ए बी का नया पोजीशन हो जाएगा ऐसे ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, डी डैश, एंड द न्यूट्रल एक्सिस ऐसे हो जाएगा। तो इसमें देखते ही हमको पता चलता है क्या, क्या पता चलता है देख के, कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, इसमें देखो लेंथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, मतलब इसका इसमें कंप्रेशन आ रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे वाला हिस्सा में लास्ट जो हमारे जो फाइबर होगा, लास्ट जो फाइबर वो उसमें क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो लेयर है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, नीचे वाला हिस्से में टेंशन हो रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा एक्सपैंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तुम जितना नीचे जाओगे उसमें ये कंप्रेशन स्ट्रेस कम होता रहेगा, एंड आफ्टर सर्टेन लेयर उसमें टेंशन स्ट्रेस आना जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये लास्ट का जो लेयर है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर में एक कोई लेयर है जिस लेयर में कोई टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि सबसे ऊपर में जो है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, सबसे नीचे वाला जो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। एंड ये कैसे हो, ये जो हो रहा है इसका मतलब तुम जितना नीचे जाओगे टॉप फाइबर से जितना नीचे जाओगे कंप्रेसिव स्ट्रेस थोड़ा कम होता जाएगा, एंड अराउंड सम रीजन इन द मिडल इसमें ऐसे एक जगह आएगा जहां पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर से टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, एंड ये लास्ट जो फाइबर है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये जो बीच वाला जो लेयर होगा इसको हम कहेंगे न्यूट्रल लेयर। ये न्यूट्रल लेयर में क्या होगा, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं रहेगा, नो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो ये कैसे नहीं रहेगा, इतना मतलब ये न्यूट्रल लेयर का लेंथ चेंज नहीं हो पाएगा, इसका लेंथ चेंज नहीं होता है, इसीलिए नो स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो ये लेयर को तो क्या होता है, नो चेंज ऑफ लेंथ। बाकी सारे जगह में देखो लेंथ यहाँ पे कम घट रहा है, यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन ये बीच वाला कोई लेयर है जिसमें चेंज लेंथ का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल लेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें से कोई भी एक लेयर को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ जो है
लेंथ ले लेते हैं इसको dx वेरी स्मॉल, एंड इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल लेयर है इसको लेते हैं हम स्मॉल y, एंड इसका जो थिकनेस है इसको हम लेते हैं dy। तो हमने क्या कर रहे हैं, एक dx लेंथ ले रहे हैं दो प्लेन ए बी एंड सी डी के अंदर, जिसका थिकनेस होगा dy एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, एंड लेंथ है कितना dx। तो ये कहां पे लिया हमने, EF लिए हैं लेयर। तो अभी ये जो बेंडिंग करने के बाद जो नया डायग्राम बना है उसमें EF को दिखाते हैं। हम देखेंगे इसका लेंथ बड़ा हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये y रह गया है, ये थिकनेस भी dy रह गया है, और ये जो है इसको हम अगर ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। O होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, R हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये R कहां से, ये हमारे न्यूट्रल लेयर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम लिखेंगे R, कैपिटल R, ठीक है। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा, अगर हम इसको स्ट्रेस डायग्राम बनाएं, अगर ये न्यूट्रल लेयर है तो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा ऐसे, जहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ये पॉजिटिव होगा और टेंसाइल स्ट्रेस नेगेटिव हो सकता है। या हम उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब हम कंप्रेसिव को पॉजिटिव लिए तो ऐसे दिखेगा, अगर हम टेंसाइल को पॉजिटिव लेंगे जस्ट उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, इसको देखेंगे, इससे हम अपना डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो एन एन डैश है, ये एन इन डैश, ये भी एन इन डैश, ठीक है। एन इन डैश तो कितने हुए, अगर यहाँ पे जो एंगल सबटेंड है वो अगर थीटा है बाय दिस टू प्लेन्स ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश, ये जो प्लेन इसको हम बना दे तो ये ओ पे मिलता है, तो ओ हो जाता है सेंटर, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये एंगल थीटा मिले तो आर थीटा क्या मिलेगा, एन एन डैश, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एन एन डैश कितना है, आर इंटू थीटा। सिमिलरली ये ई डैश एफ डैश जो लेयर है उस लेयर का हम जो लिए हैं, तो ये एन एन हुआ और ये एन डैश हुआ, ठीक है। ये एन एन बाद में क्या हुआ, एन डैश। तो हम ये ई डैश एफ डैश देख रहे हैं, ई डैश एफ डैश इसको देख रहे हैं, तो इस लेयर का रेडियस कितना होगा, आर प्लस वाई, एंगल यहाँ पे थीटा ही है, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस वाई इंटू थीटा, लिख दिए। ई डैश एफ डैश, ये एन एन डैश, एन एन एंड एन डैश एन डैश, इनको हम क्या बोले कि न्यूट्रल लेयर है, तो इसमें कोई चेंज ऑफ लेंथ नहीं होने वाला है। तो एन डैश सॉरी एन डैश इज आर थीटा, सो एन डैश इज इक्वल टू एन एन, ये हो गया कितना, ये हमने dx लिए थे, ये हो गया dx, ये जो एन डैश है ये एन एन का बराबर है, ये एन एन का लेंथ कितना है dx, ठीक है। तो ये dx को हम क्या लिख सकते हैं, आर थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे आर थीटा। अभी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लेयर EF, इंक्रीज
इन लेंथ ऑफ लेयर EF। मतलब कैसे क्या होगा ये, E डैश F डैश माइनस EF कितना होगा, ये देखो हमने लिखे E डैश F डैश कितना, R प्लस वाई इंटू थीटा माइनस EF कितना, dx, dx मतलब R थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कितना आता है, Y थीटा। तो अभी स्ट्रेन इन लेयर EF, स्ट्रेन इन लेयर EF कितना होगा, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीजिंग लेंथ कितना, y थीटा यहां पे मिला है, एंड ओरिजिनल लेंथ कितना, EF मतलब r थीटा। EF इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू r थीटा, ये हमने यहां से मिला है। तो y थीटा बाय r थीटा, सो थीटा थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, इट विल बी y बाय r। नाउ जब r कांस्टेंट है, जो हमको दिख रहा है कि एन एन डैश इज द न्यूट्रल लेयर, तो ये r कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एन डैश और एन एन का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स है, कोई भी बीम है वो फिक्स है। तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये y के ऊपर। तो y जितना बड़ा होगा, y मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेयर फ्रॉम न्यूट्रल लेयर। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया, इसमें हमको पता चल रहा है कि r इज कांस्टेंट, सो y इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये न्यूट्रल लेयर से तुम जितना दूर जाओगे, स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेस वेरिएशन निकालते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो रिलेशनशिप है स्ट्रेन के साथ या फिर इंक्रीज ऑफ लेंथ के साथ, ये जो y का जो जो रिलेशनशिप है ये लीनियर होगा, क्योंकि ये y टू दी पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप लीनियरली वेरी करेगा, जितना y बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, और इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्ट्रेस में क्या होता है। तो स्ट्रेस को हम अगर सिग्मा बोल के मान के चले, स्ट्रेस हमारा कितना है, सिग्मा। तो स्ट्रेस इज सिग्मा इन लेयर EF। ठीक है, तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना, y बाय r। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू वाई बाई आर, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। और इस रिलेशन को हम लोग याद करके रखेंगे, क्योंकि ये डिराइवेशन में भी आ सकते हैं, एंड एज वेल एज ये हमारा काम में आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमको क्या निकलना है कि न्यूट्रल एक्सिस को कैसे मिलेगा एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा। मतलब जो एक्सटर्नल लोडिंग हो रहा है उसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है और रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है बीम के अंदर, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो पहला चीज न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन निकालने का, हमको स्ट्रेस पता चल गया है। स्ट्रेस कितना है, E बाई आर इंटू वाई। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेस हो गया तो फोर्स ऑन लेयर EF कितना आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया मानते हैं इसका एरिया dA होगा। तो
ये सिग्मा, इसका वैल्यू हम बिठाएंगे डायरेक्टली ई वाई बाई आर इंटू डी ए। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो द टोटल फोर्स ऑन द बीम, ठीक है, अभी तक हम ईएफ लेयर लेके चल रहे थे, अभी हम टोटल बीम ले लेंगे, टोटल बीम के ऊपर कितना फोर्स आ जा रहा है वो देखेंगे। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, ई बाई आर इंटू वाई डी ए को, ठीक है। तो ये ई बाई आर जो पोर्शन है ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा वाई डी ए। तो अभी देखने के बाद ये है कि हमारा जो प्योर बेंडिंग है हमने लिए हैं, कि एजम्पशंस प्योर बेंडिंग के कंडीशंस हमने लिए हैं, उसमें हम देखें कि इसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा। सो फ्रॉम एजम्पशन और फ्रॉम कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे ई आर इंटू वाई डी ए इज इक्वल टू जीरो। ई बाई आर कॉन्स्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वाई डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए होता है मोमेंट ऑफ एरिया डी ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ एरिया डी ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो इंटीग्रेशन वाई डी ए है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाई डी ए रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ एरिया, मतलब एंटायर एरिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो हमको क्या पता है, द मोमेंट ऑफ एनी एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी एरिया लेंगे उसका मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे और वो जीरो रहा, इसका मतलब वो सेंट्रॉइड से पास हो जा रहा है, उसका एक्सिस जो है, मोमेंट ऑफ एरिया लेने का जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइडल एक्सिस। आज हम यही रुकेंगे और बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमको सेंट्रॉइडल एक्सिस पता चलेगा तो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस भी पता चल जाएगा। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता चलेगा, सेंट्रॉइड निकलना है, उस सेंट्रॉइड से ये न्यूट्रल एक्सिस पास करेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल स्टॉप इट हियर। समझ में आ रहा है कुछ या फिर रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे? ये वेरी आसान सा है, एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके देन वी विल स्टॉप हियर टुडे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताना। We'll meet you on the next class. And in the meantime, we will take a viva. Please prepare for that. In any day, we will take a viva. Stay safe. Bye for today.